Hi guys, welcome to Mission IAS, and this is your friend Asif Sayed. So guys, we have started a lecture series on ancient Indian history, and this is the video on Magad Empire. This is also topic of ancient Indian history. So basically, we would cover here the important rulers and their contribution to the state. So basically, here are three dynasties जिसने इस पर रूल किया मगध एम्पायर पर. ओके, मगध स्टेट पर. So there are three dynasties. So we would see the dynasties and their important rulers with their contributions. So guys, if you are new to this channel, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस मिलती रहे. तो गाइज वी वुड कवर ऑल द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. तो प्रोबेबली अगली वीडियो के बाद ओके इन दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और देन वी वुड मूव टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सो टॉपिक वाइज टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वी वुड कवर ऑल द टॉपिक्स और सिलेबस ऑफ यूपीएससी. सो गाइज लेट्स स्टार्ट मगध एम्पायर. So guys, if you talk about the formal founder of the empire, then Jarasandha and Brihadratha. Okay, Brihadratha. These are the two people that we can say these are the formal founder. Okay, these are the formal founder. I'm saying founder. These are the founder of Magad Empire. So the very first dynasty that ruled over Magad is Haryanka dynasty, and here also we would discuss only important rulers and their contributions that are only important for UPSC. Okay, so let's see Haryanka dynasty, the first important and powerful dynasty in Magadha. Okay, Magad की जो है तो first important powerful dynasty, that is Haryanka dynasty. So the first man or ruler of Haryanka dynasty was Bimbisara. Okay, this is his time period 558 BC to 491 BC. Okay, so this was or he was son of Bhatia. He ruled over Magad from 544 BC to 493 BC. Okay, then he was contemporary and follower of Buddha and was also said admirer of महावीरा. तो ऐसा भी कहा जाता है कि महावीरा और बुद्धा कंटेम्पररी है. अब ये बुद्धा को कंटेम्पररी है इन द सेंस ही इज ऑल्सो कंटेम्पररी टू महावीरा. तो दोनों भी कंटेम्पररी थे. ओके, ये तीनों भी पीपल जो तो एक दूसरे को कंटेम्पररी थे उस समय में. सो हिज कैपिटल वॉज ग्रीवराजा मीन्स राजगीर. ओके, राजगीर उनकी कैपिटल थी and he was also known as Sreniya. Then he was the first king to have standing army. Okay, standing army in the sense ki exact, okay, immediate army. So he was the first king who had immediate army. If you want to fight right now, then he had army that he can stand to fight at the moment or at point of time. He started the practice of using matrimonial alliances. Okay, तो इसकी थ्योरी क्या थी? मैट्रिमोनियल अलायंसेस. ये आसपास के किंगडम की जो लेडीज से मैरिज कर लेता था और उसकी स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन. ओके, तो उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लेता था. सो इन दिस केस इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस he had married three ladies. Okay, he had three wives. So first is Kosla Devi. She was king of Kosla's daughter and sister of Prasenjit. Okay, Prasenjit की sister थी और जो कोसला king था उसकी daughter. Then second lady was Chellana. Okay, daughter of Lichavi chief of Vaishali. Okay, Vaishali chief की ये daughter थी. And then third was Khema. She was daughter of king of Modra. Okay, which is in Punjab. So this was is kind of policy, that is matrimonial policy. तो शादी बना लेता था आसपास के स्टेट की लेडियों से और अपनी जो है तो ताकत बढ़ा लेता था. ओके, तो ससुर तो मदद करेंगे ही ना, तो इस कुछ हिसाब से. देन ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑल्सो. तो इसके अलावा ये कॉन्क्वेस्ट भी करता था, वो वॉर फाइट. ओके, तो ये भी चलता था. मोस्ट नोटेबल कॉन्क्वेस्ट बाय बिम्बिसारा वाज दैट ऑफ अंगा. तो अंग उसने अनेक्स कर लिया था. ओके, दिस इज द टेरिटरी ही हैड ओन.
ही हैड एन इफेक्टिव एंड एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस समय थी विच वॉज डिवाइडेड ओके तो एग्जीक्यूटिव मिलिटरी एंड जुडिशियल तो कुछ दिस काइंड ऑफ नो टुडे वी हैव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी देन लेजिस्लेटिव तो कुछ इस तरह से ओके कोई कायदा बनाता है कोई फॉलो करता है और कोई फॉलो करने लगाता है इवन कोई जज करता है उसे सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम वाज आल्सो अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. The second important ruler of this dynasty was Ajatshutru. Okay, he was son of Bimbisara and Chellana. Okay, this was his second wife, Chellana. Third, and then Hema was okay. Third, so he killed his father, means he killed Bimbisar and became ruler. And later on it is said that he embraced Buddhism. ऐसा भी बताया जाता है कि पहले ये महावीरा यानी जैनिज्म को फेवर करता था. Okay, this Ajatshutru. But later on he moved toward okay तो बुद्धिज्म की ओर वो बढ़ गया जिसमें उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह जस्ट आफ्टर दैट ऑफ बुद्धा इन 483 बीसी तो वहां पे उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था. देन थर्ड रूलर दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट वी हैव टेकन ओके सो उदयन इज आल्सो लिटिल बिट इम्पोर्टेंट. He was son of Ajasatru and he shifted his capital to Patliputra in Patna. Okay, तो पटना को यानी पाटलिपुत्रा को which was the very जो तो एकदम अच्छी जगह थी जहाँ से वो आसानी से आसानी से रूल कर सके. So it was a kind of center where they had rivers and all other things where they can move fast everywhere. तो वहां से ज्यादा उनको आसान पड़ता था रूल करने में. He was the last major हरियाणा का ruler and succeeded by three kings Aniruddha, Manda and Nagadasaka. So these were the ruler that came after him. Then again there was important dynasty that ruled over this Magadhan empire, that was Sisunga dynasty. So according to Sri Lankan chronicles, the people of Magad revolted during the region of Nagadasaka and placed an Amatya minister named Susunga as the king. तो शायद there might be happened something that was not good for the people. तो people ने उसके खिलाफ लास्ट रूलर था ना नागादास का तो उसके खिलाफ रिवोल्ट किया और उसे राजा के पद से हटा के उसका उस वक्त का नागादास का जो मिनिस्टर था दैट हिज नेम वाज सिसु नागा. सिसु नागा जो था तो ये सिसु नागा किंग उन्होंने सिसु नागो को किंग बना दिया. सो देयरफॉर देयर इज सिसुंगा डायनेस्टी. सिसुनागा डायनेस्टी यू कैन इवन से सिसुंगा और से सिसुनागा नो प्रॉब्लम. तो उसको रूलर बना दिया उस समय में. देन लेटर ऑन लेट्स सी सिसुंगा ही वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ काशी. तो पहले वाइसराय ऑफ काशी अमात्य था ना उस समय. तो he then became king of Magad जिसको पीपल ने किंग बनाया and his capital as ग्रीवराज. तो राजगीर. He annexed Avanti and brought an end to the long rivalry between Magad and Avanti, and later he shifted capital to Vaishali. Vaishali को उसने capital ले गया. Then after him the king that his name was Kalasoka. He came to power. He was son of Sisunaga. And Kalasoka shifted capital again to Patliputra. He conducted the second Buddhist council at Vaisali. तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो भी बुद्धिज्म को फेवर करता था. देयरफॉर ही जैसे उसने ये ऑर्गेनाइज की थी और कंडक्ट की थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली. ही वाज किल्ड इन पैलेस रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट द नंदा डायनेस्टी टू द थ्रोन. अब लेटर ऑन तो इसके जाने के बाद देन थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट केम टू रूल तो वो थी नंदा डायनेस्टी. सो the first ruler of Nanda dynasty was Mahapadma Nanda. So he is called the first historical emperor of India. तो इसे ऐसा क्यों कहा गया? He murdered कालासोका to become the king. इसके पहले जो है तो कालासोका किंग था. अच्छा समझे. तो उसने कालासोका को मर्डर किया and then came to power. His origin is not clear. अभी तक तो कोई पुराण के अलग अलग रेफरेंसेस अलग अलग इन्फो देते हैं उसके बारे में. तो some says that he was from Shudra woman.
तो शूद्रा वुमन का वो बेटा है. एज पर सम जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक राइटर कर्टियस, ओके, ही वाज द सन ऑफ बारबेर एंड कर्टिसन. तो ऐसे अलग अलग रेफरेंस है, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल. Okay, let it be. His region lasted for 28 years. Okay, 28 years के लिए पावर में था, from 367 BC to 338 BC. He is called सर्व क्षत्रियांका. सर्व क्षत्रियांका मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास एंड एकरात. तो इसने क्या किया था? नाउ द फर्स्ट जो तो एक कन्वेंशन टाइप था. ओके, तो सब क्षत्रिय जो पीपल होते थे तो रूलर होते थे. बट दिस इसने क्या किया? इसने क्षत्रिय को ही खत्म कर दिया. ओके, क्षत्रिय पूरी तरह से खत्म कर दिया, उनका रूल ही खत्म कर दिया. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सर्व क्षत्रिय यंतका. ओके, यंतक अंत. ओके, अंत का, सर्व क्षत्रिय अंत का, ऐसा आप इसको पढ़िए. तब सारे क्षत्रिय इसने अंत कर दिए. द एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीजन. It ran from Kuru country in the north to the Godavari valley in the south. और फिर नॉर्थ से साउथ तक जो है तो इसका एक्सपेंशन हुआ. एंड फ्रॉम मगध in the east to Narmada on the west. So this kind of his expansion of his region. He conquered many kingdoms including कलिंगा को भी उसने अपने जो है तो अंडर में ले लिया था. Then second important ruler was there Dhanananda. तो Dhanananda was last ruler and he is referred as अग्रमेस और जैंड्रमेस इन ग्रीक टेक्स्ट. तो ग्रीक टेक्स्ट इसे दो नाम देते हैं. ओके, अग्रमेस और जैंड्रमेस. तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड northwestern India during his region and he could not proceed towards the Gangetic plains because of his army refusal. तो अलेक्जेंडर इस समय में जो है तो मौर्यन एम्पायर पर, यू कैन से मगधन एम्पायर, ओके, नॉट मौर्यन, सॉरी फॉर दैट, मगधन एम्पायर, इसके रीजन में जो तो अटैक करने को आया था. लेकिन यू नो दिस नॉर्दर्न रीजन इज काइंड ऑफ हिली एंड अलोंग विथ इट इज काइंड ऑफ यू नो जो है तो व्हाट वी कैन से तो डिजर्ट. ओके, डिजर्ट ही तो कुछ डिजर्ट टाइप है. तो देयरफॉर दिस आर्मी, और इसके पहले भी इवन ये तो बहुत साल से लड़ रहा था ना इस हमारे एरिया में. ओके, तो अफगानिस्तान इस एरिया में कुछ बहुत सालों से इसकी जो है तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन शुरू थी. तो आर्मी भी कुछ ना कुछ तरह से यू नो बोर हो गई थी कि यार कब तक लड़े यार, अभी तो चलना भी मुश्किल हो गया था. सो देयरफॉर आर्मी ने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो फिर उसे जो है तो वापिस जाना पड़ा. ओके, ही कुड नॉट फाइट or could not proceed towards the Gangetic plains. He inherited a huge empire from his father. He possessed a standing army of 2 lakh infantry, 20,000 cavalry, 3,000 elephants, and 2,000 chariots. He became a powerful ruler because of this. और इतनी सब पावर होने के बाद how he cannot become पावरफुल. ओके, तो इतना सारा होने के बाद ये इन्वेजन्स में कामयाब होता रहा अच्छी तरह से. ही इज सेड टू बी वन ऑफ द 8 or 9 sons of महापद्मनंदा. Okay, he became unpopular with his subjects owing to an oppressive way of extracting taxes. तो इसने बहुत सारे taxes लगाए थे. Therefore, he was becoming unpopular. Also, his Shudra origin and also an anti-Kshatriya policy lead to a large number of enemies. तो इसी के साथ ओके टैक्स की भी बात थी, बट अब टैक्स के बाद भी ये इसकी जो है तो शूद्रा ओरिजिन. ओके, शूद्रा इतनी लॉविस्ट कास्ट का आदमी आके हमारे ऊपर रूल करेगा, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग पीपल हैड, तो वो सह नहीं पाए. ओके, दे कुडंट बियर, देयरफॉर दे स्टार्टेड टू अपोज दिस व्हाट वी कैन से दिस किंग. ओके, तो इसको अपोजिट करना उन्होंने शुरू कर दिया. एवं ये इसकी पॉलिसी जो थी एंटी क्षत्रिय. ओके, तो मैंने आपको अभी यहाँ बताया जैसे कि ही वाज यू नो जो है तो इनकी पॉलिसी यही थी. ओके, तो क्षत्रिय ये जो अब हमने देखा ना, तो फर्स्ट रूलर, ओके, तो पद्मनंदा, तो दे वेर द काइंड ऑफ पीपल दैट वे अपोजिट टू क्षत्रिय. ओके, क्षत्रिय सर्वनाश. तो क्षत्रिय पीपल जो स्टेट में थे तो वो भी इसे अपोजिट कर रहे थे क्योंकि ये उनके खिलाफ चढ़ रहे थे ये नंदा डायनेस्टी. सो देयर वर नंबर ऑफ इनेमीज, उसके बहुत सारे इनेमीज बन गए थे. एंड फाइनली ही वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य along with चाणक्य which lead to foundation of Mauryan Empire in Magadha. तो इसके बाद यहाँ फिर आ गया मौर्यन एम्पायर. तो मौर्यन एम्पायर का
I hope we will do in next video about Magad Empire, Maurya Empire. Okay, so this was the Magad Empire. As you know, the चालुक्य तो बहुत चालाक था, नाम से ही समझ में आता है. चाणक्य वॉज ए चालाक पर्सन. ओके, काइंड ऑफ. तो उसने इसकी मदद की चंद्रगुप्त मौर्य की, एंड देन इसके बाद इन्होंने उसे ओवरथ्रोन कर दिया और फिर जो है तो पावर में आ गए. सो गाइज, दिस वाज द ऑल द थिंग्स अबाउट मगध एम्पायर, एंड आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे. ओके, तो अभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क विदाउट हेजिस्टिंग. ओके, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे ईमेल कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर. ओके, हमारा फेसबुक पेज भी यहाँ पर दिया गया है, अबाउट चैनल सेक्शन में देखिए, तो वहाँ भी आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं पेज पर. इवन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन मैसेज मी, नो प्रॉब्लम. तो आप मुझे किधर भी आपकी प्रॉब्लम बता सकते हो. आई हैव कनेक्टेड ऑल द साइट्स टू माई चैनल. तो आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम, वी वुड क्लेरिफाई योर प्रॉब्लम्स. एंड अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और इफ यू थिंक दैट कंटेंट हैव काइंड ऑफ पावर, ओके, तो कंटेंट में दम है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए. ओके, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है इट इज वर्दी ऑफ शेयर, तो हर उस आदमी से शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है. तो गाइस, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.